जय मसीह की चर्च। आप सबका स्वागत है आज हमारे लाइव स्ट्रीम में। एंड हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस स्ट्रीम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और हमारी आशा है कि आज प्रभु इस स्ट्रीम के द्वारा आपको बहुत आशीष देंगे। गुड morning, good evening to all of you who are joining us, and we want to thank you for joining the stream. And we pray that this is a great time of blessing for you, for your family. As you watch this stream, we pray that the Lord would touch your life and would speak to all of you. Amen. Amen, amen. And Amen. today with us we have Pastor Tyler, and it is such a great privilege for me to have him with us. And Tyler is a youth pastor at Calvary Chapel, Dallas, and today he will be sharing with us the Lord's word, and I am so excited. Man, I'm excited for just to be here. This is like such an honor. This is so cool. This is just a blessing to be able to speak to the church, to the flock of God, and to speak the word of God. There's nothing better. I mean, this is the Lord's word is the most important thing in this world, because we get to learn the heart of God. And I think that's just a beautiful thing. And so just to be able to have this time to speak it and to be with you, and this is just, I mean, I'm just so excited, man. I can't stand it. That is great. That is great. And just the heart that, we have is that today God would speak to all of us. As Tyler said, God's word is so powerful that it speaks to all our lives. It speaks to all our hearts. And we believe that his word will truly touch us, will transform us, will go like a powerful seed into all our lives, and that our hearts would open like that good soil. Yes. That will bring much harvest and fruit for his kingdom. Yes, definitely. Amen. And so मैं जो है वो टाइलर के लिए अनुवाद करूंगा, ट्रांसलेशन करूंगा, और वो हमारे लिए आज का वचन हमारे लिए लेके आएंगे। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ये औरों के लिए भी एक आशीष का कारण हो। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर उनको कमेंट सेक्शन में डालें, तो हम रुक कर उनका जवाब भी देना चाहेंगे। And we pray that this is a blessed time. If you have any questions, if you have any prayers, please do write them in the comment section below, and we would love to answer those questions as well. God bless you. Yeah, praise the Lord for sure. Yeah, if you guys do, seriously, as we're going on, and as I begin to speak the word, if you have any questions about what we're discussing today, I think that's an amazing time, to really dive into the word. And hey, I'm not exactly sure what this means, or what are you talking about that? Like, that's a great way to drive the conversation. And a lot of times the Holy Spirit will put a question on your heart. And this is a beautiful time for us to answer those questions and allow the Spirit to kind of lead. Same with you. If you have any questions, and if I need to slow down, definitely have me slow down, because For sure. once I get going, it's hard to stop. So. Yes. That's what we want. That's awesome. So when Pastor Abby asked me to come and do this, I was asking the Lord, what is it that you really want to speak to your congregation, to your flock? And I really didn't have a clue. There's so many things. The Bible is a wealth of knowledge and growth and experience, and it's an amazing time. That it's like, what do you choose? What am I going with? But then yesterday, and I've spoken to Abby about this already, but yesterday I had this. Okay, so I had this amazing experience yesterday. कल मेरा एक बहुत अच्छा experience हुआ. And this experience started when I was driving in my car to work. और ये experience मेरे साथ तब हुआ जब मैं गाड़ी से काम की तरफ जा रहा था. I have a really good friend who was asking me a lot of questions about deliverance. मेरा एक दोस्त है जो मुझसे deliverance या छुटकारे के बारे में पूछ रहा था. So from demonic possession, oppression, anything like bad dreams. शैतानी ताकत, शैतानी मंसूबे, किस तरीके से शैतान जो है अपने कामों को करता है, उनके बारे में. And in this conversation, I started to really question and wonder, Lord, what is
deliverance ministry. और उस बात में परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा और उसकी नजदीकी में जाऊं, जानूं. And I'm going to be completely honest, I still am not 100%. और मैं आपसे सच में दिल से कहना चाहता हूं कि अभी भी मैं सीख रहा हूं. But I do know that in studying the word salvation and knowing Jesus, that it all begins with Jesus. पर इस बात को मैं जरूर जानता हूं और मेरा ये विश्वास है कि उसकी शुरुआत उद्धार से होती है, परमेश्वर यीशु मसीह को जानने से होती है. So driving into work, I was asking the Lord, could you please reveal what deliverance means to me or means to you? जब मैं काम की ओर जा रहा था तब मेरे को परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं उनसे दुआ में इस बात को मानूं और पूछूं उनसे कि इस छुटकारे की मिनिस्ट्री के बारे में मैं कैसे और आगे बढ़ सकता हूं, जान सकता हूं. Yeah, so I've come into contact with a couple of demon possessed people. मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो शैतानी ताकतों से ग्रसित थे. And I've seen a few that have been delivered, and then I've seen a few that have not been delivered. और उनमें से कुछ को छुटकारा मिला था और कुछ को नहीं. I've also seen in the case of generational curses, some be delivered and some not be delivered. जो जनरेशन या जो पीढ़ी भर पीढ़ी से जो कर्सेस हैं, जो कष्ट हैं, जो लोगों को मिले हैं, मैंने उनमें भी लोगों को देखा है कि कुछ को छुटकारा मिलता है और कुछ को नहीं मिलता. So my question was, what is there a process? तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई प्रोसेस है या क्या कोई तरीका है जिससे हम उस छुटकारे को परमेश्वर से ले सकते हैं. Sorry, my mic is falling. Sorry, मेरा माइक फिक्स करने की जरूरत है. One second. I'm over here watching it. It's just going down for. Let's see, righty. Uh-oh. Oh, it should be over here. Oh, okay. Check. Yeah. Okay. And so in asking the Lord this, I was listening to a podcast and was getting some answers. और इसी का उत्तर जानने के लिए मैं कुछ पॉडकास्ट को सुनने लगा. And some of it was really way out there. Some of it was crazy. और बहुत सारे जो पॉडकास्ट थे वो बहुत crazy थे, बहुत सारे उसमें questions थे. Yeah. So, but some of it was really good. There was some nuggets in there. पर कुछ बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. And one of the big things that really hit my heart. और एक ऐसी बात जो मेरे दिल को बहुत छू गई. Was this idea of completely letting go of control. वो ये बात थी कि अपना कंट्रोल या अपनी जो खुदी है उसको पूरी तरीके से छोड़ देना परमेश्वर के ऊपर. But what does that mean? पर उसका मतलब क्या है? Is it total control of my physical body? क्या वो पूरा नियंत्रण है मेरी फिजिकल या मेरी शारीरिक बॉडी का? Is it total control of my emotional? क्या वो मेरे सोचों का या मेरे जज्बातों का नियंत्रण है? Or is it total control of my soul? क्या वो मेरी आत्मा का पूरा नियंत्रण देना है? Or is it all three? या फिर वो पूरा तीनों चीजें हैं? And what I found in this experience that I had yesterday, और जो मैंने पाया इस पूरे अनुभव में जो मेरे साथ कल हुआ, it's letting go of all three. उसका मतलब है कि इन तीनों का नियंत्रण छोड़ना. It's giving control to Jesus in your physical, यीशु मसीह को अपना शारीरिक नियंत्रण देना, in your emotional, and in your spiritual. अपना जज्बातों का और अपनी आत्मा का नियंत्रण देना. So when I got to the church, तो जब मैं चर्च पहुंचा, I went up and I had my quiet time with the Lord. और जब मैं शांति में अपने कमरे में बैठा था, and of course everything starts to get in the way. और तब सब चीजें जो हैं आप जानते हैं कि आसपास आ जाती हैं. I forgot my charger at home. मैं अपना चार्जर घर पे भूल गया. Had to go start looking for a charger for my computer because it was dying. और मुझे अपने चार्जर ढूंढना पड़ गया क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो रहा था. But as I'm walking out to go find this charger, पर जब मैं बाहर निकला कमरे से अपने चार्जर को ढूंढने के लिए, I felt the Holy Spirit speak to me. तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की. And he said, Tyler, you need to go back into your room. और उसने कहा कि टाइलर अपने कमरे में वापस जा. Now,
when people hear the Holy Spirit speaking to you, it can be confusing. और जब पवित्र आत्मा लोगों से बात करता है तब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. So what it sounds like to me तो जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, मैंने सोचा is this is going to sound weird, but it's a different voice in my head. कि एक अलग सी आवाज थी जो मैंने सुनी. It's not my voice, it's not my thoughts. वो मेरी आवाज और वो मेरे विचार नहीं थे. And it's very clear and distinct. वो बहुत क्लियर था और बहुत ही स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट था. It's the Holy Spirit that's speaking to what we would say the heart, but you hear him in your mind. वो पवित्र आत्मा था जो हमारे दिल से बात करता है और हमारे मन को बदल देता है. So I want to pause right here, because if you don't know what the Holy Spirit sounds like, that is a very important part. यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ और ये बात आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं तो उसका अनुभव और उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. Because if we are going to give over full control, यदि आप अपना पूरा नियंत्रण देना चाहते हैं, we have to know the voice of the Lord. तो आपको परमेश्वर की आवाज सुननी जरूरी है. Because as we relinquish control of our will, क्योंकि जब आप अपनी नियंत्रण को देते हैं, we're giving it to somebody. या किसी को देते हैं, And if we're going to give it to somebody, जब आप किसी को देना चाहते हैं, then we need to give it to the Lord. तो आपको परमेश्वर को उस नियंत्रण को देने की जरूरत है. Otherwise, we're opening a lot of doors to some stuff that we might not need. वरना आप कुछ ऐसे दरवाजों को, ऐसी रास्तों को अपने जीवन में खोल देते हैं जो आप नहीं खोलना चाहते. So I went back into my room. तो आप अपने कमरे में गए, टाइलर अपने कमरे में गए. And I got down on the floor. I started praying. और वो जमीन पे बैठे और दुआ करने लग गए. And it started out, and I wanted it to be really raw. और वो चाहते थे कि वो बिल्कुल रियल हो, बिल्कुल रॉ हो. Yeah, very real, very like visceral, very from the heart. एकदम ऐसा जैसे बिल्कुल दिल से वो बात निकलती है. And it started with asking and confessing sins. और शुरुआत हुई पापों का अंगीकार करने से. I was asking for the Lord's forgiveness in some hidden sins. मैं परमेश्वर से उसकी दया मांग रहा था, उसके छुटकारे को मांग रहा था कुछ गुनाहों के ऊपर. I was asking for forgiveness in different actions that I had done that morning. मैं परमेश्वर से माफी मांगने लगा उन चुनावों के लिए अपनी जिंदगी में जो मैंने पहले लिए थे. I'll be completely transparent. मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूँ. Me and my mother got into an argument that morning. मैं और मेरी माँ की लड़ाई हो गई थी उसी सुबह. And it was an attack from the enemy. और वो शैतान की तरफ से एक अटैक था. It was to hit me and my mother's emotions. वो इसलिए था ताकि हम मेरी और मेरे माँ के रिश्ते के बीच में वो एक टकराव को लेके आ जाए. And we know when we're led away by our emotions, we can be led into sin. और बहुत बार जब हम अपने जज्बातों से घिर जाते हैं या चलते हैं तो हम पाप की ओर गिरते हैं. And then of course there were a lot of other sins that had been, in my mind that morning as well. और बहुत से ऐसे पाप भी थे जिनकी वजह से मैं सोच रहा था और मेरे दिमाग में चल रही थी वो बातें. So I was very intentional in what I was asking the Lord to forgive. तो इसलिए मैं परमेश्वर से चाहता था कि परमेश्वर मुझे उन गुनाहों के लिए माफ करें. And I really wanted him to understand that I am coming at this with a contrite heart. और परमेश्वर से मैं कहना चाहता था कि मैं सच्चे दिल के साथ परमेश्वर आपके प्रेजेंस के अंदर आया हूँ. And I felt the Lord speak to me. और मैंने ये महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझसे बात की. And the Lord was very kind in what he was asking me to do. और परमेश्वर बहुत सच्चे से, बहुत ही काइंड थे, उन्होंने मुझे बताया. He was kind but firm. वो सच्चे थे पर उन्होंने बहुत ही एक अथॉरिटी के साथ, एक फर्मनेस के साथ मुझे बताया. And so once that time was over of asking for forgiveness, जब वो समय खत्म हुआ, जब मैंने माफी मांग ली परमेश्वर से और परमेश्वर ने मुझे माफ किया, I had all of these thoughts going on in my mind. इतने सारे विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे. Of course, all the different prayer requests that you can normally ask. बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट, बहुत सारे प्रार्थना के निवेदन थे. And I felt like the Holy Spirit asked me to
first speak aloud और पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे दिल में डाला कि मैं जोर से बोलूं, so that I wouldn't be distracted by the thoughts in my head. कि मैं व्याकुल ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं उन सब चीजों से जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। But he wanted me to be intentional about what I was asking. पर वो चाहता था कि मैं एकदम सीधे तरीके से उससे मांगूं जो वो मुझसे मांगना चाहता And it है। was none of the normal, Lord, you know, bless me, keep me, all that kind of stuff. और ये कोई साधारण सी दुआ नहीं थी जो मैं रोज करता था, जिसमें मैं परमेश्वर से मांगता था, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीके की दुआ थी। It was specific, and Lord, I want to feel your presence. ये इतना यूनिक था कि मैं चाह रहा था कि परमेश्वर, मैं आपकी प्रेजेंस को, मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। I asked him if I could walk with him like Adam walked with him. मैंने उससे पूछा कि क्या प्रभु मैं आपके साथ वैसे चल सकता हूँ जैसे आदम आपके साथ चलता था। I asked him if I could be like Enoch. मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं वैसा आपके साथ चल सकता हूँ जैसा ईनोक आपके साथ चलता था। If I could hold his hand. क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। If I could audibly hear him. क्या मैं आपकी आवाज अपने कानों से सुन सकता हूँ। And at this time, there was a multitude of noises that started happening in my office. और उस समय मैंने अपने दिल में और अपने दिमाग में मैंने सुना कि बहुत सारी आवाजें जो थी मैं सुन पा रहा था। I felt like there was a presence in the room. मैंने महसूस किया कि उस जगह पर एक बहुत गहरी उपस्थिति परमेश्वर की आ गई I थी। felt like the walls were creaking and shaking. मैंने ऐसा महसूस किया कि जो मेरे आसपास दीवारें थी उनमें से क्रैक्स की आवाज आने लग गई। Man, I even felt like my chair that I was sitting in, and I wasn't sitting in the chair, but I felt like my chair moved. मैंने यहाँ तक महसूस किया कि जो मेरी चेयर जिस पे मैं बैठा था वो भी थोड़ी सी हिल गई। It was actually quite terrifying. बहुत ज्यादा मैं थोड़ा सा डर गया था। And as I was lying there and I was asking the Lord for this stuff, और जब मैं वहां पर बैठा था और मैं परमेश्वर से इन बातों को मांग रहा था, I started to question whether I actually wanted to feel him hold my hand and hear him speak to me. मैं सचमुच उन बातों को सोचने लग गया कि जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में ये बात डाली थी कि मैं परमेश्वर आपको सुनना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ और आपके हाथ को पकड़ना चाहता हूँ। मैं सोचने लग गया कि क्या सच में मैंने इन चीजों को मांगा। And I thought, if you were to really think about what it would be like if you were in a room by yourself. और अगर आप अपने आप को उस जगह पर डालें कि आप इस कमरे में बिल्कुल अकेले हैं, Nobody else in the building. और कोई उस बिल्डिंग में नहीं है, All by myself. सिर्फ मैं ही उस बिल्डिंग में अकेला था। And I'm laying down on the ground. और मैं जमीन पे लेटा हुआ हूँ, eyes shut. मेरी आंखें बंद हैं। And then all of a sudden a man's voice speaks to you. और तभी एक इंसान की आवाज मेरे पास आती है। That would be terrifying. उसमें हर कोई डर सकता है। मैं डर गया। And so I started to question, do I really want to hear from the Lord? और मैं मेरे जीवन में मेरे उस परिस्थिति में मैं सोचने लग गया कि क्या सचमुच मेरे को ये सवाल करना चाहिए? I know what I'm asking for, but do I really want it? मुझे पता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ, पर क्या मुझे सच में इसकी आवश्यकता है? It's a terrifying prospect when you start to think about, what if I really did hear from the Lord? ये बहुत ही एक डरा देने वाली बात है कि यदि अगर सचमुच मैंने परमेश्वर से सुन लिया तो क्या होगा? And so this fear started to take over. और वो जो डर है वो मेरे को कब्जा करने लग गया। And I started to tremble. और मैं घबराने लग गया। Like physically shake. और शारीरिक रूप से भी मैं शेक कर रहा था। Because now all of this stuff is going on in the room. क्योंकि अब ये सारी चीजें जो है कमरे में चल रही हैं। And I'm starting to think about, I'm the only one here. And if I hear from the Lord, what am I actually going to do? और क्योंकि मैं कमरे में अकेला हूँ, मैं इन सब बातों को सोच रहा हूँ कि यदि अगर मैंने सच में परमेश्वर की आवाज सुनी तो कैसा होगा? And in this moment, I thought, in this moment, I heard the Lord speak to me and say, if you really want to know about deliverance,
you need to let go of control. और उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि यदि तू सचमुच छुटकारे के बारे में जानना चाहता है तो तुझे अपना पूरा नियंत्रण मुझे देना पड़ेगा. So my prayers have changed from just a normal prayer to wanting to experience this with the Lord. तो मेरी प्रार्थना बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल बदल गई उस बात से कि मैं परमेश्वर इन सब चीजों को अनुभव करना चाहता हूँ. And now he's asking me to give over control. क्योंकि अब वो मुझे बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रार्थना में क्या मांगना है, और सबसे पहली बात वो ये थी कि मैं अपना पूरा नियंत्रण उसको दे दूं. And I think we've all experienced this to some extent. और मुझे लगता है कि हम सब ने इसको कुछ हद तक महसूस किया है. But have we ever really let go fully of all control? पर क्या सच में हमने अपने पूरे नियंत्रण को परमेश्वर को दिया है? To the point where you are okay with death. इस समय तक कि आपको मृत्यु तक भी अगर आ जाए तो आप अपने नियंत्रण को परमेश्वर के हाथ में देने को तैयार हैं. And not just death in the physical, but death in the emotional and in the spiritual. मृत्यु सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं पर आत्मिक और आपके इमोशंस, आपके व्यवहार से भी. And I wasn't. और मैं उस समय रेडी नहीं था. At least at first. पहले तो नहीं. But what happened next was a major experience with the Lord. उसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही बड़ा अनुभव था मेरे जीवन में. So I never experienced his audible voice or his physical touch. मैंने परमेश्वर की आवाज और उसके जो स्पर्श है उसको फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से तो महसूस नहीं किया. But I reached a point in the depths of my soul that I said, yes, Lord, you can have full control. पर मैं अपने जीवन में एक ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां मैंने कहा, हाँ प्रभु, आप पूरा नियंत्रण मेरे जीवन से ले. And what that felt like was, and the only way I can describe it is, I'm okay with whatever happens next. और वो अनुभव मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पर वो कुछ इस प्रकार से था कि मैं अपने जीवन से अब कुछ नहीं चाहता, प्रभु तू अपनी मर्जी को मेरे जीवन से पूरा कर. See, because the Holy Spirit spoke to my heart. Jesus spoke to my heart. क्योंकि पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने मेरे दिल से बात की. And he said, do you trust me? और उसने मुझसे कहा, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? Do you trust me to protect you? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? And it took me about 3 minutes to finally come to an internal answer. मुझे 3 मिनट लगे इस बात को समझने में कि मैं क्या उत्तर दूं. And the answer was yes. और उत्तर था हाँ. But at this time, all hell broke loose. और इस समय सारा जो हेल था, सारा जो आत्मिक, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीजें थी वो ओपन अप हो गई. The wall next to me started banging. जो दीवार थी मेरे साथ में वो ऐसे लगा कि जैसे कोई खटखटा रहा है. The chair started to move again. जो चेयर थी वो फिर से हिलने लग गई. The room felt like there was a tornado coming through. और रूम में ऐसा फील हुआ कि जैसे बवंडर सा आ गया है. And immediately I felt the Lord say, Tyler, you need to pray for protection over yourself now. और उसी समय मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि टाइलर इसी समय प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए दुआ करनी शुरू करो. He said there are 2 coming down the hall. 2 उसी समय जो है दरवाजे की ओर आ रहे हैं. I don't know what the 2 were, but मुझे नहीं पता वो 2 क्या थे. But I immediately started praying, and it was the Holy Spirit that just pressed out of my mouth these words of protection. पर उसी समय मेरे को समझ नहीं आया कि ये 2 लोग कौन हैं जो मेरे कमरे की तरफ आ रहे हैं, पर पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि मैं दुआ करनी शुरू करूं सुरक्षा के लिए. And then he said, you need to pray for your family. और पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने परिवार के लिए दुआ करो. So I prayed for protection over my wife and kids and my mom and grandma. तो मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी दादी माँ के लिए दुआ की. And then I felt like there was something outside the door. और तब मैंने ये भी महसूस किया कि दरवाजे के बाहर कोई है. Now all of this I have my eyes shut through. और इस पूरे समय मेरी आंखें बंद हैं. So I had to fully trust that the Lord was protecting तो me. मुझे पूरी तरह से ये विश्वास करना था कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं.
And what I believe happened और जो हुआ मैं ये महसूस करता हूँ was the Lord gave me a glimpse of what deliverance ministry कि was. परमेश्वर ने मुझे एक ग्लिम्स दिया, एक जरिया दिखाया कि जो छुटकारे की जो मिनिस्ट्री है वो कैसी दिखती है. Because as all of this turmoil was happening, क्योंकि जब ये सारी चीजें मेरे आसपास हो रही थी, I had this so I started out terrified. तो मैं जब शुरुआत हुई तब बहुत डरा हुआ था. And it lasted all the way until I gave up full control. और ये तब तक बात चली जब तक मैंने अपना पूरा नियंत्रण परमेश्वर को नहीं दे दिया. And then I had this overwhelming sense of peace. और उसके बाद मैंने परमेश्वर की गहरी उपस्थिति महसूस करी और मेरे जीवन में शांति को मैंने एक्सपीरियंस किया. I knew that Jesus was watching over me. मैंने ये महसूस किया और जाना कि यीशु मसीह मेरे को देख रहे हैं, मेरे साथ हैं. I knew he was going to protect me. मुझे पता था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मेरी सुरक्षा करेंगे. And come to find out, there was some crazy stuff going on with my wife and kids who were on a walk at that same time. वाओ. और मैंने इस बात को जाना कि जब मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया पूरे इंसिडेंट के बाद, तो वो भी जब वॉक पे गई थी तब बहुत ही एक मुश्किल समय से वो निकल रही थी और मेरी दुआ से उनको प्रोटेक्शन At the same time, उसी समय it was as I was praying for protection for them, they had run into a homeless man that was walking. उसी समय जब मैं दुआ कर रहा था तब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि वो चल रहे थे, रास्ते में थे और तभी एक होमलेस इंसान से उनकी मुलाकात हुई. And my dog that was with them started just going nuts. और इनका जो डॉग था वो उस इंसान को देखकर थोड़ा सा घबरा गया. And my youngest son started saying, "Go home, mama, go home." और उसके छोटे बेटे ने उनसे कहा कि मम्मी घर चलो, मम्मी घर चलो. So it was just such a divine moment. ये बहुत ही एक अनुभव जो था मेरे जीवन में मुझे बदल दिया. That the Lord is now speaking to me for protection, and he's speaking to me for protection for my family. कि परमेश्वर ने ना सिर्फ मुझे बट मेरे परिवार के लिए दुआ करने को कहा कि मैं उनके लिए प्रोटेक्शन की दुआ करूं, सुरक्षा की दुआ करूं. So back in my office, और तो जब मैं वापस अपने ऑफिस आया, now it goes silent. तब सब कुछ शांत हो गया. So the banging on the door stops. दरवाजे पे जो बैंग हो रही थी, जो आवाजें आ रही थी वो बंद हो गई. All the movement in the office stops. सारी जो बातें थी ऑफिस के अंदर वो The सब wall शांत हो stops गई. banging, जो दीवार थी उसमें से भी आवाज आनी बंद हो गई and it just goes silent. और सब कुछ शांत हो गया. And I don't hear from the Lord. और मैंने परमेश्वर से कुछ नहीं सुना. And so I'm laying there, and I thought, man, I don't want to be like Peter. तो वहां पर जब मैं लेटा था तब मैंने कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं पतरस के जैसा नहीं होना चाहता. When he's on the Mount of Transfiguration, जब वो उस पर्वत की ओर है, जब उसने यीशु मसीह को देखा. and he's like, it's good for us to build a tabernacle. और पतरस ने कहा कि ये अच्छा है कि यहीं पर हम अपना तंबू लगा दें. Because he has no other thing to say. क्योंकि उसके पास और कुछ कहने को So I नहीं was था. like, I don't want to do that. I'm just going to be quiet. और टाइलर ने कहा कि तब मेरे पास और कुछ कहने को नहीं था और मैं शांत हो जाता हूँ. And then after about 15 minutes, 15 मिनट के बाद the Lord asked me to sing a song of praise. परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं एक गीत गाऊं जो प्रेस का गीत है. And I don't know if you guys know the song, God is so good. मुझे नहीं पता कि आपको वो गीत पता है, पर मैंने गीत गाया गॉड इज सो गुड. Yeah, I don't know. I'm not going to sing it. मैं गाऊंगा नहीं. But so I sang this song. तो मैंने उस गीत को गाया And then the Lord spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात की. And he said, you are going to read and teach Psalm 13. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि भजन संहिता 13 आपको पढ़ना है और उसको आप प्रचार करना है. And I love this because when the Lord speaks to me like this, I'm not a biblical scholar. और मुझे ये बात बहुत पसंद आई क्योंकि मैं कोई बिब्लिकल स्कॉलर या टीचर नहीं हूँ. I don't have the entire Bible memorized. मुझे पूरी बाइबल याद भी नहीं है. So when the Lord gives me a scripture or a chapter or a book or a verse, जब परमेश्वर मुझको कोई वर्स या चैप्टर स्क्रिप्चर देते हैं, I usually don't have
any idea what it's going to say. मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्या बात करेगी. Which I love. I'm worried that when I do start knowing more, it's going to be trouble. But so he gave me this verse, or he gave me this psalm. तो परमेश्वर ने मुझको ये भजन दिया. And the psalm is a song of salvation. और जो भजन संहिता 13 है वो उद्धार का एक गीत है. It is a song of deliverance. वो छुटकारे का गीत है. And it is also a song for those who are going through a testing of delay. और ये उन लोगों के लिए भी एक गीत है जो इंतजार कर रहे हैं और रुके हुए हैं किसी चीज के लिए. That was a long intro. तो ये बहुत बड़ा एक इंट्रो है. But what I want to share with everybody today is not only that story, but this psalm and what the Lord showed me. ना सिर्फ मैं आपसे अपनी कहानी शुरू करना चाहता हूँ, बट आज मैं आपसे इस भजन के द्वारा भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ. So while I try to fix my mic, if you want to read Psalm 13. तो जब तक मैं अपना माइक ठीक करता हूँ, क्या आप मेरे लिए भजन संहिता 13 पढ़ेंगे? There we go. What verses do you want me to read, Tyler? It's 6 verses. 6, okay. And do you want me to read it first in English, yes, and then you can read it? Okay, so in English it says, "How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest my enemies say I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me." Amen. भजन संहिता 13 1 से लेके 6. हे परमेश्वर, तू कब तक क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे. मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी. ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाऊं तो मेरे शत्रु मगन हो. परंतु मैंने तो तेरे करुणा पर भरोसा रखा. मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन है. मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है. Amen. Amen. Let's pray real quick. Dear Lord, thank you for today. प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you for your word. आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Thank you that we can trust in you. हम धन्यवाद करते हैं कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं. Thank you for your Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए. Thank you for your salvation. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उद्धार के लिए. Thank you for pulling us from the mire. धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें छुड़ा लिया. Thank you for adopting us in. धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने हमें स्वीकार किया. Thank you for allowing us to come into the Holy of Holies. धन्यवाद हो कि आप हमें पवित्र और पवित्र स्थानों पर बिठाते हैं. And speak with the Holy God. और आप हमें परमेश्वर से बात करने की ये समय देते हैं. Lord, today, परमेश्वर आज help us understand this scripture. हमारी सहायता करें कि हम इस स्क्रिप्चर को समझ सकें. Speak to our hearts. हमारे दिल से बात करें. Teach us your ways. आप हमें अपनी बातें समझाएं. Teach us your heart. अपना दिल दिखाएं. Lord, help us. प्रभु आप हमारी सहायता करें. King Jesus, you are so amazing. राजा यीशु आप बहुत महान हैं. We thank you for your blood. हम आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं. Lord, and we ask that you would be present in our hearts today. और हम दुआ करते हैं प्रभु कि आज आप हम में से हर एक से बात करें, हमारे दिल से बात करें. And it is in your precious name, King Jesus. और यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते हैं. आमीन. So, this psalm is broken up into 3 parts. और ये भजन 3 जो पार्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड होता है. We have verse 1 and verse 2.
पहली और दूसरी आयत, This is the question of anxiety or emotional awareness. ये सवाल है एक संदेह का, एक इमोशनल डाउट का, एंजाइटी का। The second part is 3 and 4. जो सेकंड पार्ट, जो दूसरा पार्ट है, वो है आयत 3 और 4। This is the cry of prayer. ये दुआ की एक रोना है, दुआ के लिए एक रोना है। And then there's verse 5 and 6 और वर्स 5 और 6 है, is the song of faith. और ये विश्वास का गीत है। And this is all within the realm. Of course, the scriptures can be put to many different situations. और परमेश्वर का वचन हम बहुत सी अपनी जीवन की परिस्थितियों में यूज कर सकते It's हैं। the living word. वो परमेश्वर का जीवित वचन है। So it speaks to us wherever we're at. वह हमसे हर परिस्थिति में बात करता है। However, today I want us to focus on the idea of deliverance. पर आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं, जो कि है छुटकारे का। The idea of salvation. जो टॉपिक है उद्धार का, And the idea of letting go of full control. और इस बात को कि हमें अपना पूरा नियंत्रण देना है। So in verses 1 and 2, तो पहली और दूसरी आयत में we see David crying out to the Lord. हम देखते हैं कि किस रीति से दाऊद पूरे दिल से रो रहा है। He's asking, Lord, how long are you going to turn your face from वो me? कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर कब तक तू मुझसे अपना चेहरा छुपाए रखेगा? Will you forget me forever? क्या तू मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा? How long shall I take counsel in my soul? मैं कब तक अपने शरीर में, अपने सोल में जो है अपनी समझ का सहारा लूं? How long will I have sorrow in my heart? कब तक मेरे दिल जो है वो व्याकुल रहेगा? How long will my enemy be exalted over me? कब तक मेरे शत्रु मेरे ऊपर प्रभुता करेंगे? How many of us have asked that question? हम में से कितनों ने ये सवाल किया है? How many of us have asked for, Lord, what is going on? हम में से कितनों ने ये सवाल किया है कि परमेश्वर क्या हो रहा है? Why is this still happening to me? ऐसा मेरे साथ अभी भी क्यों हो रहा है? Why have you forgotten me? तू मुझे क्यों भूल गया है? Why have you not answered me? तूने अभी तक मेरा उत्तर क्यों नहीं दिया है? We see this cry from David. हम दाऊद से इस प्रहार को, इस क्राई को देखते हैं। And this cry isn't a questioning cry. और ये रोना जो है वो एक सवाल नहीं है। It's not a questioning if the Lord is real. इस बात के ऊपर सवाल नहीं है कि परमेश्वर सच्चा है। It's not an arrogant question. ये एक एरोगेंस या उसकी जो उसका मन की बात नहीं है। But instead it's a pouring out of his soul. पर ये उसके दिल जो है, उसकी आत्मा जो परमेश्वर के लिए उंडेली जा रही है। He's coming to the Lord in a very real and raw moment. वो परमेश्वर के पास एकदम रियल रॉ स्टेट पे एकदम अपने आप को खाली कर रहा है। Very much like I did yesterday. बिल्कुल जैसा मैंने अपने आप को किया। Now mine wasn't necessarily, Lord, are you forgetting me? मेरा सचमुच वैसा नहीं था कि क्या परमेश्वर आप मुझे भूल गए हैं। But I wanted to experience that face of God. I wanted to experience the presence of God. पर मैं परमेश्वर के चेहरे को, उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहता And था। I think we see that here with David. और मैं समझता हूँ यहाँ पर हम दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही देखते हैं। But how often in our relationships, पर इतनी बार हमारे रिलेशनशिप में, in decisions that need to be made, हमारे जिंदगी के चुनावों में, maybe in addictions that we struggle with, उन एडिक्शंस के साथ, उन चुनावों के साथ जो हम अपने जीवन में लेते हैं, or in deliverance, या इवन छुटकारे में, how often do we feel like the Lord's forgotten us? हम इतनी बार सोचते हैं कि क्या परमेश्वर आप हमें भूल गए हैं। There's a lot of times when the Lord seems to be distant. इतनी बार ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर हमसे दूर है। This is not a time that the Lord has forgotten you. ये वो समय नहीं है कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं। This is the time that the Lord's calling you to press in, ये वो समय है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और उनकी नजदीकी में आ जाए, to have a deeper relationship with Him, कि आप उनके साथ एक और गहरे रिलेशनशिप में To आ have- जाए, to have a deeper understanding with Him, एक और गहरे अनुभव में आप उनके आ जाएं, to change your perspective. ताकि वो आपका नजरिया बदल सके। But we do have some great
evidence and stories in the Bible, historical evidence, और हमारे पास बाइबल के अंदर बहुत ही अगर आप हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं that this has happened to even the strongest of believer. कि ये उन लोगों के साथ भी हुआ है जो बहुत विश्वास में मजबूत थे In the area of relationships, हमारे रिश्तों के नजरिए से देखा जाए we know the prayer of Hannah, हम जानते हैं हन्ना की दुआ how she was barren and could not have any children. कि किस रीति से उसके पास औलाद नहीं थी और वो दुआ कर रही थी एक औलाद के लिए And in 1 Samuel chapter 1 verses 1 through 20, और पहले सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 1 to 20 में she is crying out to the Lord. वो परमेश्वर की ओर रोती है She is asking for the Lord to provide a baby. वो परमेश्वर से मांगती है कि वो उसके लिए एक औलाद को दे She's an outcast from society. वो पूरे समाज से निकाली हुई एक महिला है I can never remember. Peninnah पेनिना was harassing her because she had not had a baby. उसको परेशान कर रही थी क्योंकि वो बच्चा नहीं था उसके पास This was Elkanah's second wife. एल्कनास की दूसरी पत्नी And even when she went to the temple to pray, और जब वो मंदिर में जाती है दुआ करने the priest that was there जो वहां का जो प्रीस्ट होता है saw her praying but not saying anything. दुआ करते हुए उस हन्ना को देखता है और कहता नहीं है Her lips were moving, but she was praying on the inside. उसके जो होठ है वो हिल रहे होते हैं पर वो दिल से अपने प्रार्थना कर And रही he है said, "Get out of here, you drunk woman." और वो कहता है कि यहाँ से बाहर निकल जा तू पी कर आई है क्या So even the priest that she was going to pray to the Lord at the temple, तो वो प्रीस्ट भी जब वो दुआ करने जाती है उस मंदिर में this priest didn't even recognize it वो प्रीस्ट भी उसको समझ नहीं पाता and scorned her. और उसको डांट देता है It seemed like the Lord had left Hannah. ऐसा लगा कि हन्ना को परमेश्वर ने छोड़ दिया है It seemed like he wasn't answering her prayer. कि वो उसकी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा है But we know the end of that story. पर हम उस कहानी का अंत जानते हैं Samuel was born शमूएल जो है अब वो पैदा हुआ and became a great priest. और बहुत बड़ा प्रीस्ट बना And the idea of deliverance, इस छुटकारे का जो टॉपिक है उसके अंदर we see Job, हम जोब की कहानी को देखते हैं अय्यूब की कहानी and I को think we all know the story of और Job. हम उसकी कहानी भी बहुत अच्छे से जानते हैं He got absolutely whopped. वो बहुत ही परेशानियों में फंस गया था He was hit hard, and it seemed like the Lord had turned his face from him. वो हर ओर से आजमाया गया और ऐसा लगा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है His friends came and they ridiculed him. उसके दोस्त आए और उन्होंने उसको लानत दी बोला कि कहाँ पर तू आ गया है His wife, उसकी पत्नी she says, "Why don't you just curse God and die?" उसने कहा कि तू परमेश्वर को क्यों ना कर्ज करे और मर जाए Oh man, with a wife like that. ऐसी वाइफ होना yes. But yeah, Job got hit hard and he felt like the Lord was far from him. और जो हर ओर से उस पर कठिनाइयां आई परेशानियां आई और ऐसा लगा कि वो बहुत ही गिर चुका है But the salvation of the Lord was close. पर परमेश्वर का उद्धार नजदीक It था was just but a light and momentary affliction. इसका मतलब ये था कि बस थोड़ी देर उसको इंतजार करने की जरूरत है In the realm of addictions, हमारे एडिक्शंस के समय में and it's not necessarily an addiction, but I think that we can draw from Paul और ये सच में एडिक्शन नहीं है पर हम पौलुस की कहानी देख सकते हैं that he had a thorn in the flesh. कि उसके पैर के अंदर एक थॉर्न है एक कांटा है And the Lord said when Paul asked for it to be removed 3 times, और जब पौलुस परमेश्वर से कहता है कि इसको निकाल दो 3 बार पर परमेश्वर नहीं निकालते the Lord said, "My grace is sufficient for you." और परमेश्वर कहते हैं कि मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है He said, "In your weakness, I am made strong." वो कहते हैं कि मेरे कमजोर होने पे तू स्ट्रांग है तू बलवान है
Now, I'm not saying addiction is something that we should hang on to. और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो एडिक्शंस जो टेम्पटेशन है उन पे हम अड़े रहें. We should take that before the Lord. हमें उन्हें परमेश्वर के पास लेके जाना चाहिए. And the more that we press into a relationship with the Lord, और जब हम और नजदीकी से उसके साथ एक रिश्ते में आते हैं, the more that we delight in the Lord. और ज्यादा हम उसके अंदर अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं, खुश पाते हैं. And our perspective change. और हमारा नजरिया बदलता है. We start to not desire the things of the world. हम शारीरिक जो ये जिस्म चाहता है और जो ये दुनिया चाहती है वो नहीं मांगते. Instead, we start delighting in the things of the Lord. हम उन चीजों में अपने अनुभव को, अपनी संतुष्टि को मांगते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से We चाहते feed on His faithfulness. हैं. हम उसके विश्वास योग्यता पे रहते We हैं. delight in His statutes. हम उसके बातों पर खड़े रहते हैं. We delight in His commandments. हम उसकी कमांडमेंट्स, उसके जो बातें हैं उन पर बने रहते हैं. Our life changes because we love the Lord. हमारी जिंदगी बदल जाती है क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते But हैं. this only comes through a relationship पर ये उसी से आता है जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते and हैं a fully letting go of all of our control. और एक पूर्ण अपने नियंत्रण को जब हम परमेश्वर के ऊपर दे देते हैं. We have to have that relationship with Jesus Christ. हमें वैसा रिश्ता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होना जरूरी है We have to allow the Holy Spirit to enter inside of us. कि पवित्र आत्मा को हम हमारे अंदर आने दें. We have to be cleansed by the blood of God. हम परमेश्वर के लहू के द्वारा पूरी तरीके से शुद्ध हों. Jesus was our spotless lamb, यीशु मसीह बेऐब बर्रे थे and He died for our sins, और वो हमारे पापों के लिए मारे गए and He imputed His righteousness unto us. और उन्होंने अपनी धार्मिकता हमको सेंत मीत में दी. And then He asked us to be holy, for He is holy. और वो कहते हैं कि पवित्र हो कि जैसे वो भी पवित्र है. All of this ये सब comes through fully letting go of your will and fully leaning on His will. ये सारी बातें तभी हमारे जीवन में पूरी होती हैं जब हम अपना पूरा नियंत्रण परमेश्वर को देते हैं. Now, I think one of the most beautiful pictures of fully letting go सबसे खूबसूरत जो पिक्चर, जो कहानी है, जो मुझे लगती है पूर्ण जो अपना नियंत्रण देने की है and crying out to God और परमेश्वर की ओर रोने को, परमेश्वर की ओर देखने की है when it seemed like He had turned His face. उस समय में जब ऐसा लगता है कि उसने अपना मुंह आपकी ओर से मोड़ लिया है, Came from King Jesus. यीशु मसीह से हमें मिलती है. In Matthew 26, verses 36 through 46. मत्ती उसके 26वें अध्याय की वर्स, Matthew 26, 36 through 46. मत्ती 26, 26 to 36. The Lord is in the Garden of Gethsemane. परमेश्वर यीशु मसीह गत्समनी के बाग के अंदर है. And this is right before He's going to go to the cross. ये उससे पहले है जब वो सलीब पर जाने वाले हैं And He goes to the Lord. और वो परमेश्वर के पास जाते हैं. He goes to His Father. वो अपने पिता के पास जाते हैं And He says, Lord, if this cup could pass from me, let it be so. और कहते हैं कि यदि परमेश्वर पिता अगर ये प्याला मुझसे टल जाए तो ऐसा करे, But your will be done. पर फिर भी मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो. He asks this 3 times. वो ये 3 बार अपने पिता से कहते हैं. God the Father does not provide another way. परमेश्वर पिता और कोई जरिया प्रोवाइड नहीं करते. And this is such an interesting scripture to me. और ये इतना एक अनुभव, इतना एक पावरफुल स्क्रिप्चर है मेरे लिए. Because we know that it was for His pleasure that He went to the cross. क्योंकि ये इसलिए नहीं था कि यीशु सिर्फ सलीब पर जाएं, पर ये वो चाहता था. But even Jesus was asking, Lord, where are you? पर फिर भी यीशु चाह रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू कहाँ है. He's saying, God, if there's any other way, let this cup pass from me. कि परमेश्वर अगर कोई और जरिया है तो ये जो प्याला है मुझसे हट जाए. Now, let's think about that for just a second. आए कुछ देर के लिए इस बात को समझे. It's God Almighty. ये परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर है. There could have easily been another way. शायद सचमुच ऐसा कोई जरिया हो सकता था. God could have changed everything. परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं. But the Lord saw it fit पर परमेश्वर ने इस बात को सही जाना to sacrifice His word who became flesh.
कि उस वचन को जो देधारी हुआ, जो खुद परमेश्वर का वचन था, वो बलिदान हो। his son, उसका खुद का बेटा, his one and only son, उसका इकलौता बेटा on the cross for our उस sins. सलीब पर आपके और मेरे पापों के लिए। And it's through this unconditional love और इस अद्भुत प्रेम के द्वारा that we start to understand God, हम परमेश्वर को समझ पाए, that we have a readmittance into the Holy of कि Holies. आज हम परमेश्वर के नजदीकी में, उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। And I've thought about this a lot. और मैंने इस बात को बहुत सोचा। As human beings, इंसान होने के नाते what if the only way we can experience God क्या पता शायद परमेश्वर को समझने की जो बात है वो सिर्फ what if the only way that we can know God, सिर्फ एक बात जो जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, that we can understand God, कि हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, that we can have relationship with कि God, हम उसके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, is through an act of unconditional love. ये सिर्फ उसी से हो सकता है कि हम परमेश्वर की ओर एक प्रेम रखें जो बिना किसी कंडीशंस के हो। And what if this unconditional love और क्या पता ये अनकंडीशनल जो लव है is only but one leaf ये सिर्फ एक वो पत्ता है on one tree उस पेड़ पे, in a forest उस बाग में, of who God really is. जो परमेश्वर कहता है वो है। And we will spend the rest of eternity और हम पूरी अपनी जो इटर्निटी है, आने वाली जिंदगी है, finding out who God really इस is. बात को समझने में गुजारेंगे कि परमेश्वर सचमुच कौन है। But it's on this side of eternity पर इस जगह पे, इस पृथ्वी पर जब हम हैं, that our small human minds हमारी जो बुद्धि है वो बहुत कम है can only understand और इतना ही समझ सकती है through unconditional love. परमेश्वर के अद्भुत अनकंडीशनल प्रेम से जो उसने हमसे Man, I किया love है। that. ओ, मैं This उसको is- बहुत पसंद करता हूँ। It's so crazy. That's such a crazy thought that it's the only thing that we are going to understand of God is through unconditional love. जो कुछ हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। Because even his judgment is unconditional. क्योंकि उसकी जो जजमेंट है, उसका जो धार्मिकता है, वो भी His judgment is love. And उसका जो जजमेंट है वो भी प्रेम से होता है। his blessing is love. उसकी आशीषें भी हमें प्रेम से मिलती हैं। His relationship is love. उसका रिलेशनशिप, उसकी जो सहभागिता है वो भी हमें प्रेम से ही मिलती है। Giving us a free will is love. परमेश्वर का हमें एक पूर्ण नियंत्रण, एक फ्री विल देना भी परमेश्वर के प्रेम के द्वारा है। That is a very deep thought to let roll around in your head. ये बहुत एक बड़ा दिमाग को मतलब भौचक्का करने वाली बात, पर फिर भी एक संतुष्ट करने वाली बात कि परमेश्वर अपने प्रेम में हमको ये सब कुछ देते हैं। But going back to what we were talking about. पर हम वापस आते हैं कि हम किस चीज की बारे में बात कर रहे हैं। So we see even Jesus Christ cry out to God if there was another way. And we see that Jesus almost cries out like the Lord doesn't hear him. हम यीशु मसीह की जीवन को जब देखते हैं गतसमनी के गार्डन में, तब हम देखते हैं किस रीति से वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए और रो रहे हैं कि क्या वो प्याला अगर हो सके तो वो टल जाए। But all of the examples from Hannah to Job to Paul to Jesus, पर ये सारे जो हमने अनुभव देखे, चाहे वो हन्ना की जिंदगी हो, चाहे वो पौलुस की जिंदगी हो, या चाहे वो यीशु मसीह की जिंदगी हो, they all relinquished control. उन्होंने अपने नियंत्रण को दे दिया। Even our God, Jesus Christ, our spotless lamb, हमारे यीशु मसीह ने भी, जो बेऐब बर्रा था परमेश्वर का, उसने भी अपने नियंत्रण को दे दिया, relinquished control. नियंत्रण दे दिया। What a beautiful thing. कितनी अद्भुत बात है। And this is how we are to respond when we feel like the Lord is not answering us. और यही वो तरीका है जब हम जानते हैं और हमें एक चुनाव लेना है कि जब हम परमेश्वर की ओर से आवाज को नहीं सुन रहे, कि अपने नियंत्रण को हमें परमेश्वर को देना है। The Lord is asking us to hand over our will, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मर्जी को उसके हाथ में दें,
to fully let go of control, कि पूरी तरीके से अपने जीवन का अधिकार हम उसको दें, to fully trust that he will protect us. पूरी तरीके से विश्वास करें कि वो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षित रखता है, Protect our mind, हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है, protect our heart and our हमारे physical. दिल और हमारे फिजिकल बॉडी को भी सुरक्षित रखता है. Now, in what we see with David in Psalm 13 जब हम दाऊद को देखते हैं भजन 13 में, is him moving from this pouring out of his heart जो अपने पूरे दिल से ये दुआ कर रहा है, into him pouring out his heart into a direct prayer. पूरे दिल से एक दुआ को कर रहा है. This is verse 3 and 4. ये तीसरी और चौथी आयत है. He says, "Consider and hear me, O Lord, enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death." वो कहता है, ए मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी. So this first verse, verse 3, तो ये तीसरी आयत, the word consider in the Hebrew जो शब्द है मुझे सोच या कंसिडर कर इब्रानी में, means to regard or pay attention to. का मतलब है कि अटेंशन में लाना या फिर उस बात को नमन करना, It means to look upon me. कि परमेश्वर की ओर देखना. And this word hear me और ये वर्ड तू मुझे सुन, ध्यान दे, in the Hebrew means to answer or respond, to testify. इब्रानी में इसका अर्थ है कि एक टेस्टिमनी देना या फिर एक बात जो है परमेश्वर को बोलना. So David's cried out to the Lord, "Lord, why have you not heard me? Why are you so far from me?" तो दाऊद हम देखते हैं कि इस तीसरी आयत में परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं सुन रहा है. Now he turns to a prayer and he says, "Lord, look upon me, regard me and answer me." वो दुआ में इसको परमेश्वर को कहते हैं कि मेरी ओर अपनी आंखों को लगा. Again, this is not out of arrogance. ये इस बात से नहीं है कि दाऊद कुछ साबित करना चाहते हैं. You know, God is not a genie. खुदा जो है वो एक जीनी नहीं है. He's not just there to grant wishes. वो सिर्फ वहां पर हमारी जो हम चाहते हैं, इच्छाएं रखते हैं, उनको पूरा करने के लिए नहीं है. He's not even there to bless us. वो सिर्फ हमें आशीष देने के लिए ही नहीं है. His will be accomplished. उसकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी होती है. And it's really for us to fall in line with his will. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीवन को उसकी मर्जी के अनुसार चलाएं. So with David following after the will of God, तो दाऊद परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाता है, उसकी मर्जी पे चल रहा चाहता है. he's asking, "Lord, hear me, tell me where I'm supposed to be, tell me what I'm supposed to do." तो वो परमेश्वर से इस बात को मांग रहा है, परमेश्वर तू मुझे बता, तेरी मर्जी मेरे जीवन से क्या है, तू क्या चाहता He's है, saying, "What is your will? तेरी मर्जी क्या है, Where do I fit into this? मैं इस पूरी परिस्थिति में कहाँ पे आता हूँ, कहाँ फिट होता हूँ. I feel like you're so far from me, ऐसा लग रहा है परमेश्वर की तू मुझसे बहुत दूर है, and I need to experience what your will is. और I need to experience your presence." और मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ. And then this is so awesome, this next part. और ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे. He says, "Enlighten my eyes, वो कहता है मेरी आंखों में ज्योति आने दे, lest I sleep the sleep of death." नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी. This word enlighten is or in the Hebrew. ये जो शब्द है ज्योति, इब्रानी में इसका अर्थ है और. It means to give light, to illuminate, to shine, or to make shine. इसका मतलब है रोशनी, जो अंधकार में हमको चीजें दिखाती है, जो इल्यूमिनेट करती है चीजों को. He's saying, "Illuminate my eyes." वो कहता है मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर. And if we see and we follow the scriptures, this word enlighten, we see two other places. वो जब हम इस शब्द को देखते हैं, जो वर्ड एनलाइटन है या ज्योति है, वो दो तरीके से हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. We see it in 1 Samuel and we see it in Ezra. हम पहले सैमुएल में और एजरा की पुस्तक में इसको पढ़ते हैं. In 1 Samuel, we see Jonathan, the son of Saul, fighting the Philistines. पहले सैमुएल में हम जोनाथन के बारे में पढ़ते हैं, जब वो फिलिस्तीनी आर्मी के साथ लड़ाई कर रहा है. And we see Saul command a oath that was not the best oath. और राजा सॉल एक एक बात जो है अपनी प्रजा को कह रहे हैं. Saul says, don't eat anything. Nobody eat anything until
until there's vengeance on my enemies. सॉल कहते हैं अपने लोगों को कि किसी को भी खाना नहीं खाना है जब तक हम अपने लोगों पर बदला ना ले लें. But Jonathan's been out in the battlefield पर जोनाथन जो उसका सॉल का बेटा है वो युद्ध में है and he didn't hear the oath. और उसने उस बात को नहीं सुना. So as they're fighting and they're running through the forest, तो जब वो लड़ाई कर रहे हैं और वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, Jonathan has been slaughtering Philistines like crazy. जोनाथन जो है वो फिलिस्तीनी लोगों को बहुत पछाड़ रहा है, मार रहा है. And he's super tired. और वो बहुत थका हुआ है. And so he sticks his spear into a honeycomb. तो वो जो है अपना भाला एक शहद के छत्ते के अंदर डाल देता है. And he takes the honey and he eats it. और उस शहद को लेकर खा लेता है. And we see this word enlighten because when he eats the honey, और हम देखते हैं ये शब्द enlighten या ज्योति, जब वो शहद को खाता है, his countenance is enlightened. उसका जो पूरा शरीर है वो enlighten हो जाता है, वो ज्योति से भर जाता है. You know when you work so hard during the day, जब सोचें कि आप बहुत थक कर अपना काम करके घर आए हैं and you're exhausted, और आप बहुत थके हुए हैं, and so you got to eat something. तो आपको कुछ खाना है. And then when you eat it, you start feeling just tons better. और जब आप खाते हैं तब आपको कितना संतुष्ट लगता है, कितना अच्छा लगता है. Your countenance is revived. आपका जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है वो वापस आ जाती है. Jonathan's countenance was revived. उसकी जो शक्ति थी वो वापस आई, वो रिवाइव हुई. And in Ezra, और यजरा की पुस्तक में हम देखते हैं he's speaking of a remnant that was remaining after their captivity, after the Hebrews' captivity. वो ऐसे एक समय के बारे में दिखा रहे हैं जब इब्रानी कैप्टिविटी से अब वो अपने आप को पा रहे हैं उस जगह पर. And it says that God, you've enlightened, that you've revived the remnant. और वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आपने जो है एनलाइटन किया है, आपने रिवाइव किया है, आपने उस परिस्थिति में भी हमको संतुष्टि दी है, so that they could rebuild the temple. ताकि हम उस मंदिर को फिर से बना सके. And we go back to David in Psalms. और हम दाऊद की ओर जब हम जाते हैं भजन में, He says, enlighten my eyes. भजन 13 में वो कहता है कि परमेश्वर मेरे आंखों की ज्योति आने दे. He says, revive my eyes. मेरी आंखों में ज्योति आने दे. This means to change our perspective. इसका मतलब कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरी जो योजना है उसको बदल दे. As we're crying out to the Lord thinking that he doesn't hear us. जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं और रोते हैं और कहते हैं परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, Our perspective is of self. वो जो समय है हम अपने बारे में सोच रहे हैं. What do I need? What मुझे do I क्या want? चाहिए, मुझे क्या जरूरत है, How can I get this? मैं कैसे इस बात को पा सकता हूँ. Help me, Lord. तू मेरी मदद कर परमेश्वर. But then we need perspective change. और इसीलिए हमको हमारे सोच को बदलना जरूरी है. See, David understood this. देखें दाऊद को ये बात पता थी Lord, why are you not hearing me? कि परमेश्वर तू मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा. Lord, hear me, परमेश्वर मेरी आवाज सुन, but change my perspective, पर मेरी सोचों को भी तू बदल दे, lest I sleep the sleep of death, वरना मैं मृत्यु की नींद सो जाऊंगा, lest my heart becomes hardened, वरना मेरा दिल जो है वो सख्त हो जाएगा, lest I walk in futility and vanity. वरना मैं ऐसी एक जीवन जीऊंगा जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है. In Ephesians, इफिसियों की पत्री में, let me go there real quick. Chapter 4, verse 17 through 19. इफिसियों उसके 14 अध्याय की 19वीं आयत में It says, this I say therefore and testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. वहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं इसलिए ये कहता हूँ और प्रभु को साक्षी करके तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि उनके व्यर्थ के विचारों के साथ अधर्मों के जैसे जीवन मत जीते रहो. उनकी बुद्धि अंधकार में भरी है, वे परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से दूर हैं, क्योंकि वे अबोध हैं और उनके मन जड़ हो गए हैं. If we are
walking with a self perspective. अगर हम एक सेल्फ एक अपने बारे में ही सोचते हुए एक जीवन को जी रहे हैं, If we have become so focused on what I need and what I want, अगर हम यही सोचते हैं कि हमको क्या चाहिए या हमको क्या जरूरत है, we don't have the right perspective of God. हम परमेश्वर के बारे में एक सही नजरिया नहीं रखते। We're hanging on to control. हम अपने नियंत्रण को अभी भी अपने पास ही रखे हुए हैं। We're not relinquishing our will. हम अपनी मर्जी को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे We're रहे। walking in the futility of our mind, हम अपने जहन, अपने दिमाग की समझ के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, and our understanding is being darkened. और हमारी जो समझ है वो अंधकार में है। We're being alienated from the life of God हम उस जीवन को ही नहीं जी पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, because of our ignorance, हमारे अंधकार में रहने, हमारी इग्नोरेंस की वजह से, because of the blindness of our heart. क्योंकि हमारा दिल जो है वो कठोर है, वो अंधा है। We're sleeping the sleep of death. हम उस स्लीप को हम उस नींद को जी रहे हैं जो मृत्यु की ओर है। We have got to ask for the Lord to enlighten our eyes. हमको मांगना है कि परमेश्वर आप हमारे आंखों को उस ज्योति से भर दें। And as the Lord enlightens our eyes, और जब परमेश्वर हमारी आंखों को उस ज्योति से भरते हैं, we understand perspective. हम परमेश्वर की योजना को समझते We हैं। understand that it's not our will but God's will that's हम going to be done. परमेश्वर की योजना को समझते हैं कि उसकी मर्जी है हमारे जीवन में, हमारी नहीं। And that it's for us in our free will to hand over control to the Lord. और ये हमारा डिसीजन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नियंत्रण को परमेश्वर को दें। This is the first step of your prayer. ये पहला स्टेप है, पहली बात है इस दुआ की। You've cried out to the Lord and this is the first step of prayer. आपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया है और ये पहला स्टेप है जो Change आपने your लेना है। perspective. अपने सोचों को आप बदल दें। To be delivered from anything in your life, उस बात से छुटकारा पाने के लिए जिस बात से आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, change your perspective. अपने नजरिए को, अपनी सोचों को आप बदल दें। It's about loving God. ये परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में है। I love it, dude. So man, good. so good. And then the second part of the prayer in verse 4, जो दूसरा पार्ट है इस प्रेयर का, वो हमें चौथी आयत में मिलता है। David stands on the promises of God. दाऊद परमेश्वर के वायदों पे खड़ा होता है। He ties in the salvation of God to the honor of God. वो परमेश्वर के उद्धार को और परमेश्वर के बल को, उसके ऑनर को टाई करता है, साथ में लेके आता है। He says, lest my enemies say I have prevailed against him, lest those who trouble me rejoice when I am moved. ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाऊं तो मेरे शत्रु मगन हो। He falls on the grace of God here. वो परमेश्वर के अनुग्रह पे अपने जीवन को रखता है। He says, Lord, hear me, answer my prayer, lest my enemies boast over you. वो कहता है परमेश्वर मेरी दुआओं को सुन, वरना मेरे शत्रु जो हैं वो मुझ पर प्रबल हो जाएंगे। You know, we even see this with David when he goes up against Goliath. हम ये तब भी देखते हैं जब दाऊद गुलायत से लड़ने को जाता है। He says, who is this uncircumcised Philistine who comes against the armies of God? वो कहता है ये कौन है ये फिलिस्तीन इंसान जो परमेश्वर के लोगों के विपरीत खड़ा है। So we are also to fall on the promises of God. और इसलिए हमें जरूरी है कि हम भी परमेश्वर के वायदों पे खड़े रहें। We're to call the promises of God. परमेश्वर के वायदों को बुलाते रहें अपने जीवन में। Now I have an outrageous number of scriptures here. There's promises throughout the scriptures all over, but I'm just going to go through a few. और बाइबल हमको इतने सारे वायदे जो है परमेश्वर ने जो हमसे किए उनके बारे में बताती है। मैं पर कुछ ही आपसे बांटना चाहता हूँ। So in Isaiah, there's a bunch of different ones. So I'm just going to read kind of the high level here. यशायाह की पुस्तक में काफी सारे वायदे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं। मैं कुछ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। In Isaiah 41, he says he's going to uphold us यशायाह 41 में वो कहता है कि वो हमें उठा लेगा with his mighty right hand. अपने दाहिने हाथ से। In Isaiah 26, he's going to keep us in perfect peace. यशायाह 26 में परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमको सच्ची शांति में रखेगा। In Isaiah 54, he says, no weapon against you shall prosper.
यशाया में ही वो हमसे कहता है कि हम पर जो भी वेपन्स हैं, जो भी वॉरफेयर के वेपन्स हैं हम पे फॉर्म होंगे, वो कभी भी प्रबल नहीं होंगे, प्रॉस्पर नहीं होंगे। In Deuteronomy 31, he says he'll never leave us nor forsake us. ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में वो हमसे कहता है कि वो ना कभी हमें छोड़ेगा और ना हमें कभी त्यागेगा। In Psalms 32, he says he will instruct and teach us in the way we should go. भजन 23 में वो हमसे कहता है कि वो हमें बताएगा कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। And Matthew 11, he says he will give us rest. मत्ती 11 में वो हमसे कहता है कि वो हमें शांति देगा। In Philippians 4, he says, be anxious for nothing. फिलिपियंस की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि डरो मत, चिंता मत करो। In Exodus, he says, the Lord will fight for you. और निर्गमन की पुस्तक में वो हमसे कहता है कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयां आपके लिए लड़ेगा। These promises we claim. ये जो वायदे हैं ये हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। We have a right perspective. हमारे पास परमेश्वर का एक सही नजरिया है। Our eyes have been enlightened. हमारी आंखें खुल चुकी हैं। And now we're claiming the promises of God. और अब हम परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में कबूल करते हैं। In right perspective. सही सोच के साथ। From his will being accomplished. उसके पर्सपेक्टिव को, उसकी मर्जी को हमारे जीवन से पूरा करने के लिए। Not from a selfish perspective. मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं। When we pray this and we cry this cry of prayer, जब हम ये दुआ करते हैं और हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, we're handing everything over to the Lord. हम परमेश्वर के पास अपने अधिकार को, अपनी सारी कंट्रोल को देते हैं। And then salvation and deliverance will be coming. और उद्धार और चंगाई और छुटकारा हमारे जीवन में आता है। And we move into verse 5 and 6. और फिर हम 5वीं और 6ठी आयत में बढ़ते हैं। Finally, the song of faith. आखिर में उस विश्वास के गीत को देखते हैं। In verse 5 and 6 it says, but I have trusted in your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. Amen. परंतु मैंने तो तेरे करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन है। He says, so the whole idea here, Lord, why are you so far from me? ये पूरा जो समय है परमेश्वर से वो कहता है कि खुदा तू मुझसे कितना दूर है, परमेश्वर तू मुझसे कितना दूर है। He's saying, deliver me, Lord. और अब वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझे छुटकारा दे। And as he cries out in prayers, he says, I enlighten my eyes. और वो कहता है कि मेरी आंखों को तू खोल दे। Change my perspective. मेरी सोचों को तू खोल दे। You have said you will keep me and protect me. तूने कहा है कि तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तू मुझे बचाए रखेगा। You said you will never leave me nor forsake me. तूने मुझे कहा है कि तू ना मुझे कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। You said no weapon formed against me shall prosper. तूने कहा है कि कोई भी शत्रु जो स्कीम, जो वेपन करता है वो मेरे लिए प्रॉस्पर नहीं होंगे। And now he says, Lord, I have trusted in your mercy. और अब वो कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरे उद्धार पर अपनी आंखों को लगाया है, मगन रखा है। And my heart shall rejoice in your salvation. और मेरा दिल जो है वो तेरे उद्धार में मगन रहेगा। मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। The renewing of your eyes. हमारी जो आंखों का बदल जाना है। And revival of our soul. और हमारी आत्मा का चेंज होना है। Brings the perspective of mercy and love through salvation. हमारे जीवन में करुणा को, अनुग्रह को और उद्धार को हमारे जीवन में लेके आता है। And even if it's not immediate. और ये भी जरूरी नहीं कि ये उसी समय सब कुछ हो। If deliverance doesn't come at that point. कि आपका छुटकारा उसी समय ना आए। The Lord is calling us to continue to press in. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए रखें। To continue to seek his face. कि हम उसकी ओर उसके चेहरे को मांगते रहें। To continue to give him control. और हमेशा अपने जीवन का अधिकार उसके हाथों में दे। Continue to trust, rejoice and sing. और हमेशा उस गीत को, उस उद्धार के गीत को गाते रहें। To have confidence, to be glad, to worship. कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, एक स्ट्रेंथ हो कि हम उसके गीत को गाएं। Because see, now with my perspective changed to the Lord's perspective. क्योंकि अब जब मेरी सोचें उसकी सोचों से चेंज हो चुकी हैं। Whatever I'm facing. जो भी मैं फेस कर रहा हूँ, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, is but a light and momentary affliction. ये सिर्फ इस पृथ्वी तक, इस जीवन तक ही है। We get an eternal perspective. हम जब स्वर्ग जाएंगे तो हमें एक आत्मिक, एक इटर्नल पर्सपेक्टिव मिलेगा। Think about this. इस बात को सोचें। When we're in eternity, जब हम अनंत काल में हैं,
and we look back at this life, और जब हम इस जीवन को देखेंगे, you're going to go, I worried about that. आप कहेंगे कि मैंने इस बात की चिंता की, That was a big deal to me. वो मेरे लिए कितनी बड़ी थी, That was so small now. अरे अब तो वो बहुत छोटी It है। was such a short time ये बहुत ही एक छोटा समय था, because the presence of the Lord in eternity is forever. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अनंतमय जीवन में पूरे समय रहती And है। what the Lord is trying to do in this side of eternity और परमेश्वर जो इस समय हमारे जीवन में, जब हम इटर्निटी में नहीं है, हमारे जीवन में करना चाहता है, is to sanctify you, वो चाहता है कि हम पूर्ण रूप से सैंक्टिफाई हों, to make you more like Jesus, कि हम यीशु मसीह जैसे हों, so that you will gain but a glimpse ताकि हम एक नजरिया पा सकें of an eternal perspective. उस अनंतमय जीवन का। This is how we count it all joy. इसलिए हम हर चीज को आनंद मनाते This हैं। is how we see it as a light and momentary affliction. इसीलिए हम देखते हैं कि एक थोड़े समय की बात है, This is how we are delivered. इसीलिए हम उद्धार पाते हैं। At least this is the first step of what I found out. ये पहला स्टेप है जो मैंने पाया। So I mean, listen, I'm praying for everybody that's listening to this. मैं दुआ कर रहा हूँ जो भी इस मैसेज को सुन रहा है, Hang in there. आप बने रहें। Know that the Lord is on your side. जाने कि परमेश्वर आपके साथ है। Know that he wants good for you. जान लें कि परमेश्वर की आपके जीवन के साथ एक बहुत अच्छी मर्जी है। He loves you so much that God died on the cross for you. वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके लिए सलीब की मौत को सह लिया। He hasn't left you. उसने आपको छोड़ा नहीं He है, hasn't forsaken उसने you. आपको त्यागा नहीं है। He's just asking you वो सिर्फ चाहता है और आपसे मांग रहा है to press in deeper and to change your perspective. कि आप उसकी हुजूरी में या उसकी प्रेजेंस में और आगे बढ़ते रहें और उसको और अपने जीवन में मांगें। Really seek that relationship. उस रिलेशनशिप, उस यूनियन में आप परमेश्वर के आ जाएं। And today, take the time to give over control. और आज ये समय लें कि आप अपना पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में दें। Make yourself available and vulnerable. अपने आप को परमेश्वर के लिए आप अवेलेबल करें और अपने आप को तोड़ दें, पस्त कर दें। Fall on your face and seek Jesus. अपने चेहरे पे आप गिर जाएं और उसको निहारते रहें, उसको तकते रहें। And trust that the storm will pass. और इस बात पर विश्वास रखें कि जो आपके जीवन में स्टॉर्म्स हैं, जो आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां हैं, वो चली जाएंगी। Because just as the Lord asked me, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझसे कहा, do you trust me to take care of you? क्या तू इस बात पर विश्वास रखता है कि मैं तेरा ध्यान रख सकता हूँ? He's asking you the same thing. वो आज आपसे भी वही सवाल करता है। Let's pray. Let's pray. Dear Lord, thank you for today. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। Lord, thank you for your salvation. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके उद्धार के लिए। Thank you for your protection. आपके हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम धन्यवाद करते Lord, हैं। help us to enlighten our eyes. परमेश्वर, आप हमारी आंखों को खोल दें। Hear our cry, Lord. हमारे रोने को आप सुने। Let our prayers come to your ears. हमारी दुआ परमेश्वर आपके कानों तक पहुंचे। Wash us in your word. अपने वचन से आप हमें धो दें। Teach us your ways. अपनी मर्जी आप हमें दिखाएं। Hold us in your mighty right hand. अपने दाहिने हाथ से आप हमें बचाए रखें, छुड़ाए रखें। We commit our souls to you. हम अपनी आत्मा को आपके हाथों में देते हैं। We present ourselves a living sacrifice. हम अपने जीवन को आपको एक जीवित बलिदान देते हैं। We hand over all control. हम सारे नियंत्रण को अपने जीवन के आपके हाथों में देते हैं। Lord, and we trust you हम आप पर भरोसा रखते हैं to keep us. कि आप हमें रख सकें। King Jesus, you are supreme. यीशु, आप सब राजाओं के राजा हैं। You are holy. आप पवित्र हैं। You are perfect. आप हर बात में काबिल हैं। Lord, and we cannot wait और परमेश्वर, हम इंतजार नहीं कर सकते to spend eternity with you, उस अनंतमय जीवन आपके साथ व्यतीत करने के लिए, learning all about you ताकि हम उन सब बातों को जान सकें आपके बारे में and loving you forevermore. और आपको हम पूरे दिल से प्रेम कर सकें। Lord, we praise and worship you today, हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर, for you are worthy to be praised. क्योंकि आप आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर Thank you हैं। for dying on the cross. आप
सलीब पर हमारे लिए मरने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for adopting us in. धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। We love you. हम धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, We thank you. हम धन्यवादित हैं। And it is in your perfect and precious name, King Jesus, that we pray all these things. और हम ये यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। Amen. Amen. Amazing. Yeah, it was God really be good. praised. This is amazing, and what a powerful word that God speaks to us. आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है, और आज परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बात किया है, और वो चाहता है कि हम अपनी आंखों को हमेशा उस पर लगाए रखें, हम विश्वास में आगे बढ़ते रहें, हम अपना पूर्ण नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में दें, उसके उद्धार में और उसकी महिमा में हम अब आगे वाले जीवन को जिए। And we pray that God blessed you through this message. Thank you, Tyler. Man, thank y'all so much for having me. It's such a blessing. It was such an amazing time in the presence of the Lord, and we love it. believe that the Lord spoke to all of you. We have got some comments, and we have Evangelist Bernard watching us from Kenya. Oh, praise the we Lord. have people from India, from different parts of the world that are watching us, and we pray that God would bless you, that this message would continue to speak to you in your life, and continue to keep us also in your prayers as we minister and we serve. And we pray that the Lord would bless you. Until next time, may the Lord bless you and keep you. Yes. And we hope to see you next week. God bless you. Thank you for watching. Thank you.